Students, as you know that your online class is running from the past few days, and you are taking care of each and every instructions of your teacher. So, students, you are by staying at your home, follow each and every rules of the COVID-19 also. And one more thing I just want to say, please go today at Vishnath Inter College to have the vaccination. If your age is more than 15 years, go and take the vaccination. With this, let me introduce myself. I am your computer science teacher, Virendra, and I am here to give you the most important lecture based on list manipulation, and you are running here the Python programming. As you know that lots of scope is there in the Python programming. You can build your artificial intelligence application, you can build your own app, you can build your own website. Many things is possible in this by using the Python programming. So now students, it's time to welcome you all. I welcome you on my YouTube channel. Please be online, be safe. Okay? Now, in this video, this as the board says that this is the list functions and methods part 2. In this, you are having 5 to 6 commands. I will give you the practically demonstration about each and every command. But students, if you feel that you want to contact with me, you have any doubt, any problem, you can contact with me on the WhatsApp as well as YouTube comment box. Okay. Now students, it's time to move on the laptop screen to have the Python programming. Students, now I'm going to start the class. In today's class, we are going to study about list functions and method. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और लिस्ट में कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हमने फिनिश कर लिया है। और आज की जो क्लास है यहाँ पर हम लिस्ट के जो फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट सिंटैक्स, कि जब आप फंक्शंस का या मेथड्स का यूज़ करेंगे तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। ओके, सो एज द स्क्रीन इज शोइंग टू यू, फर्स्ट यू राइट द लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम and then put the dot operator and then after method name. Likewise, if you want to use the function which is already used for different purpose, then suppose you want to use the index function, then how you are going to use that? First you will write the name of the list. Okay, name of the list. Suppose I have taken the name of the list is like this. Suppose I have taken L, then I put some number here like this, and then after I will write L dot, I will write here L dot, and finally the name of the index like this. And whatever the argument is you want to pass here, you can pass. Suppose you want the index of 2, you can write it. So this is the one kind of method to use the list functions. So students, this is the one kind of example for using the list functions and methods. Now we are going to have the Python screen so that you can have the practical demonstration of the same. Okay, so now students, this is your Python screen, and in this screen we are going to have the practical demonstration of the various functions. So students, our first function we are going to use here, len function. Okay, len function. Okay, so first of all I will tell you what the use for that. Okay, the use is it returns the length of the list. It means that whatever the elements are there inside the list, that will be counted by this function, and whatever the count is there, that will be returned here. How we are going to use that? Suppose I have used here len. Suppose first of all I have to declare one list here. Suppose I have to declare one list here, 1, 2, 3, 4, 5, and this list is already created now. Now once the list is created, now you are able to use the len function. Write here len, len, len in small letters. Okay, and after writing the len, you can write here L and then press enter. You will get the answer. Okay, total 5 elements are there, that's why it is written here 5.
Okay, one more way is there to use the len function. You can write here len, then after you can use this bracket here, and once the bracket is used here, you can just use the square bracket to define the list here, So now you can write the members of the list like this. Okay, like this you can write here, and once it is written here, you can just press the enter key, you can have the result here. So this is also the way to use the len function. But students, when we are using the nested list, मैंने आपको बताया था शुरू में ही नेस्टेड लिस्ट क्या होता है. आगे हम आने वाले इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में डिटेल्स जानने के लिए. लेकिन अगर मुझे पता करना है कि नेस्टेड लिस्ट का जो लेंथ है वो क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिफाइन वन लिस्ट हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 2, then 3. After that, one more list I want to define here. Suppose 1, 2, then square bracket. Again I have to use the some square bracket here, and then close it. So this is the list here. Now it is pressed. Now if you want to have the length of this one, then how can I use it? Just write it like this. See, total 5 elements are there. Okay, how we are going to count it? Just see here, first element, second element, third element, and this will considered as the fourth element, and this will considered as the fifth element. Okay, this will considered as the fifth element. Okay, that's why it is written here 5 elements are consist in this list, right? So this is all about your len function. Now we are going to have the next function, which is already known to you. The name of that function is len function. What is the name of this? Len function. Okay, so whatever the description I have given, you can use in your mobile as well as in your लैपटॉप और डेस्कटॉप ऑल्सो, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके अब हम जो है एक और फंक्शन को जानने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी आप जानते हैं आप, और उस फंक्शन का नाम है लिस्ट फंक्शन. उस फंक्शन का नाम है लिस्ट फंक्शन. ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि लिस्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं. मैंने आपको इवेल फंक्शन के बारे में भी आपको बता रखा है, इसकी भी हेल्प से आपका इवेल्युएशन प्लस जो लिस्ट है वो रिटर्न कर सकते हैं आप. ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं व्हाट इज लिस्ट. लिस्ट इज नथिंग बट इट्स अ वन काइंड ऑफ फंक्शन of the list through which you can create the list from the passed arguments which should be sequence type. अब आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हम लिस्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम, ये लिस्ट फंक्शन, ठीक है, ये केवल और केवल सीक्वेंस टाइप को ही एक्सेप्ट करेगा. सीक्वेंस टाइप मतलब जिसका सीक्वेंस बन सकता है, जैसे लिस्ट, टपल या फिर स्ट्रिंग, इन तीनों का आप बना सकते हैं आप. ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूं मैं. इट इज़ द लिस्ट विच इज़ यूज टू क्रिएट द लिस्ट ईयर फ्रॉम द पास्ड आर्गुमेंट, एंड दैट आर्गुमेंट इज अ सीक्वेंस टाइप. ओके, चलिए एक हम काम करते हैं, एक हम लिस्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले. ठीक है, सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द लिस्ट फंक्शन. मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने. अब इतना लिखने के बाद, ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आप यहाँ पर जो लिख सकते हैं वो इटरेबल जो लिख सकते हैं आप, सीक्वेंस टाइप के एलिमेंट्स लिख सकते हैं आप. जैसे मुझे अगर लिखना है स्ट्रिंग, तो मैं लिखूँगा इस तरीके से HELLOH के बाद डबल कोटेशन मार्क. अब अगर हम यहाँ पर इस चीज़ का लिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं इंटर प्रेस करूँगा और ये रही आपके सामने लिस्ट. तो ये स्ट्रिंग का लिस्ट बन गया है ये. अगर मुझे नंबर का लिस्ट बनाना है तब क्या करेंगे हम, मैंने लिखा लिस्ट, लिस्ट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर्स को पास करेंगे. ठीक है, आप यहाँ टपल पास करेंगे. टपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. अब जैसे 23, 34, 45, ठीक है, इस तरीके से. अब आप यहाँ पर इंटर प्रेस करिए, ये रही आपके लिस्ट. ओके स्टूडेंट्स,
नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट द एम्प्टी लिस्ट, हाउ कैन यू डू दैट? अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है, क्या मैं इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ? ठीक है, ये देखिए एम्प्टी लिस्ट आपकी क्रिएट हो गई। ठीक है, दिस इज द ऑल्सो वे टू क्रिएट द लिस्ट, राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू कम टू द नेक्स्ट टाइप, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज इंडेक्स फंक्शन। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स फंक्शन में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडेक्स फंक्शन होता क्या है। इंडेक्स फंक्शन इज द वन काइंड ऑफ फंक्शन विच रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। मतलब यहाँ पर जो पहला आइटम होगा उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो रिटर्न करेगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी आइटम आप पास करेंगे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसी का इंडेक्स नंबर आपको, यानी कि जो लीस्ट इंडेक्स नंबर होता है वही आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है। ठीक है, चलिए इसका हम कुछ हम यहाँ पर फंक्शंस को रन करके देख लेते हैं यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर सिंटेक्स आपका क्या हो सकता है? सिंटेक्स में आप लिखेंगे लिस्ट, जो भी आपका लिस्ट है, उसके बाद डॉट इंडेक्स लगाएंगे आप इस तरीके से, जैसे आपने लिखा लिस्ट, लिस्ट के बाद आप जो भी आपका लिस्ट है वो मेंशन कर दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ लिखिए इंडेक्स, जो भी आपका इंडेक्स है यहाँ पर, और इंडेक्स का ये जो आर्गुमेंट है यहाँ पर आप आर्गुमेंट के अंदर जो भी आपका सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप। ठीक है, ये रहा आपका सिंटेक्स फॉर यूजिंग द इंडेक्स फंक्शन। ओके, तो ये आपका तरीका हो गया ये। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग वन लिस्ट हियर। सपोज आई हैव मेंशनड हियर वन लिस्ट L1 and the content of list is 3, then 18, then 15, then 11, 12, 16, 17 and then close। ये है एलिमेंट आपके जिसका मैंने नाम दिया है L1। अब मुझे सपोज करिए इंडेक्स नंबर पर पता करना है किसी भी एलिमेंट्स का। सपोज करिए मुझे पता करना है 16 का इंडेक्स नंबर क्या है, 16 का, तो मैं लिखूंगा L1 क्योंकि ये लिस्ट का नाम है, फिर लिखूंगा इंडेक्स, ये ब्रैकेट आपका हो गया। इंडेक्स के बाद यहाँ पर मेंशन करूँगा किसका मुझे देखना है, तो मुझे देखना है 16 का, तो मैंने यहाँ 16 मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पर इंडेक्स प्रेस आपका इंटर प्रेस करूँगा, इसका इंडेक्स नंबर है 5। कैसे चेक करते हैं? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अब बात करते हैं हम कि और क्या क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट दें जो इंडेक्स में है ही नहीं तो क्या होगा? जैसे मुझे लिखना है यहाँ पर, मैंने यहाँ मेंशन किया L1 डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद मैंने यहाँ लिख दिया 90। मुझे 90 का इंडेक्स नंबर जानना है। 90 आप जानते हैं कि लिस्ट में तो है ही नहीं, इट इज़ नॉट मेंशन इन द लिस्ट, देन इट मीन्स दैट यू विल गेट द एरर, लेट मी चेक, ये दिस वन 90 इज इन नॉट लिस्ट, कि 90 लिस्ट में नहीं है, ये आपका एरर आ रहा है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये रहा आपका यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन के बारे में। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अपेंड मेथड के बारे में। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रीज़न ये कि अपेंड में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और अपेंड को हम आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले मैं अपेंड का मतलब बता दूं मैं और उसका सिंटेक्स बता दूं मैं। सिंटेक्स बहुत ही आसान है, पहले मैंने लिखा लिस्ट, लिस्ट के बाद अपेंड। ठीक है, और अपेंड जो आइटम है, आइटम जो फंक्शन है अपेंड, इसके अंदर हम आइटम्स को मेंशन कर सकते हैं। हम इसके अंदर हम जो भी आइटम लिखेंगे उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रहा आपका सिंटेक्स। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू हैव व्हाट इज द मीनिंग फॉर दैट। अपेंड का मतलब होता है कि आप जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं आप, और ऐड जब होगा अपेंड फंक्शन जो यूज़ करने पर तो केवल लास्ट में ही ऐड होगा।
It means that it adds the item to the end of the list and returns no value. And returns no value. अब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आइटम ऐड होगा बिल्कुल लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं होती है, कोई भी न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं होती है। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। मैं सपोज करिए मैंने एक लिस्ट लिया और लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, कुछ एलिमेंट्स जैसे मैंने यहाँ लिख दिया RED रेड, कलर का नाम लिख दिए। फिर मैंने यहाँ लिखा एक और कुछ कलर का नाम दे देता हूँ यहाँ पर मैं, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर येलो, ठीक है। फिर इसके बाद एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पिंक ले लिया यहाँ पर और मैंने बंद कर दिया। तो ये रही आपकी कलर्स के लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, अपेंड करना है। अपेंड करने के लिए पहले लिखा लिस्ट का नाम L, फिर इसके बाद अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन के बाद मुझे ये जो ऐड करना है, सपोज मुझे ऐड करना है ब्लू ऐड करना है मुझे, तो मैं ब्लू डबल कोट्स में लिख करके या सिंगल कोट्स में लिख करके ऐसे लिखूंगा मैं। अब यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करूँगा, इंटर करने पर कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे चेक करना है क्या ब्लू इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। देन यू विल राइट L जस्ट एंड प्रेस एंटर। सी रेड, येलो, पिंक एंड ब्लू। ब्लू इज एडेड एट द लास्ट, blue is added at the last. So this is the way to use the append function. अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर एक आपका जो ओरिजिनल लिस्ट है, ठीक है, जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें ही आपका चेंजेस हो करके एक नई लिस्ट बन गई है। लेकिन देखा जाए एक्चुअल में ये नई लिस्ट नहीं बनी है, उस पुराने में ही आपका चेंजेस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि append function does not returns a new list, okay, whatever the original list you have, just it modifies the original list, okay। तो कुछ एग्जांपल में इसका देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ आपको मैं। सपोज करिए मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पर 1, 2, 3, एक लिस्ट बन गई। लिस्ट बनने के बाद अब मुझे अपेंड करना है। अब मुझे क्या करना है, अपेंड करना है। तो अपेंड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा है L1 के बाद L डॉट अपेंड, और मुझे यहाँ पर अपेंड करना है, सपोज मुझे 12 अपेंड करना है। इस तरीके से 12 मुझे क्या करना है, अपेंड करना है। अपेंड अब यहाँ पे लिखूंगा L1, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, पूरे फंक्शन को असाइन कर दिया L1 में। और जैसे मैंने किया आपका देखिए L1 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पर मैं L1 को मैं चेक कर लेता हूँ, L1 में क्या आया है। देखिए L1 में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, कुछ भी हमारे पास इंडेक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी लिस्ट हमारे सामने नहीं आ रही है। लेकिन जैसे मैं L प्रेस करूंगा तो हमारे पास देखिए जो ओरिजिनल लिस्ट है वही लिस्ट हमारे सामने आ रही है, ठीक है। यहाँ देखिए 1, 2, 3 और 12, और L1 में चूंकि L1 में असाइन कर दिया है तो इस यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि L1 में हमने कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि L1 में हमने कुछ लिखा ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये अपेंड आपका जो है कुछ किसी भी तरह की लिस्ट रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन एंड द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज एक्सटेंड मेथड। क्या नाम है उसका, एक्सटेंड मेथड। सो एक्सटेंड मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ये, और यहाँ पर अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं आप अपने लिस्ट में तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। So I just want to repeat here, if you want to add the multiple elements in the list, you can add it, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे आपको समझाना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पर ऐड होगा, लास्ट में ऐड होगा या कहाँ ऐड होगा, ठीक है। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं आप। द एलिमेंट्स इज एडेड एट द लास्ट। लेट मी शो you about the extend function. Suppose I have create here one list here, and the name of the list is, suppose I have taken some alphabets here, that's A, okay. Next letter I will take here B here, then I will take one more and close it. So this is the one kind of list, right, and the name of the list is A, right. Now I will take one more L1, then suppose I want to add here D, and then I want to add one more
E and then close it. So right now I have two lists, one is the L and second one is L1. Now what to do here, I just want to add in L1. So I have taken L1 dot, I just want to use the extend function here, extend, then this bracket, and in this bracket you have to mention the things what it needs to be added in the second list. ओके मतलब सेकेंड लिस्ट में जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो आप फर्स्ट में ऐड करना चाहते हैं यहाँ, तो यहाँ पर जो भी आप लिस्ट का नाम है वो लिस्ट का नाम पास कर दीजिए। और अब हम चेक करते हैं, देखिए सक्सेसफुली आपका रन हो गया। और अब हम चेक करते हैं कि एल में क्या क्या चेंजेस हुए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी डी ई, यानी कि जो लास्ट के दो एलिमेंट्स हैं देखिए वो आपका ऐड हो चुके हैं। सो दिस इज द वन वे टू हैव द न्यू लिस्ट। ठीक है, अब चेक करते हैं कि जो हमारा दूसरा लिस्ट है उसमें कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ। चेक कर लेते हैं एक बार हम L1 में देखिए एज इट इज़ है वो। ठीक है, सो ये जो आप मेथड देख रहे हैं आप, इस मेथड की हेल्प से आप यहाँ पर इस तरह के जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। मैं सपोज करिए मैंने एक यहाँ वेरिएबल लिया, सपोज करिए मैंने लिया L2। ठीक है, और L2 में मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हमारी पहली लिस्ट है L1, ठीक है, मैं इसमें L2 के एलिमेंट्स डालना चाहता हूँ मैं। ठीक है, मैं इसमें L2 के जो एलिमेंट्स हैं वो डालना चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से मैंने मेंशन किया और यहाँ लिख दिया मैंने L1। मैं एक बार इस स्टेटमेंट को एक फिर से बता देता हूँ। मैं दो लिस्ट हमारे पास हैं, एक लिस्ट में हमारे पास A B C D E है, दूसरे लिस्ट में हमारे पास है D और E है। तो मैंने क्या किया, पहली लिस्ट को लिया और इस पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करने की कोशिश की और यहाँ पर मैंने इसको स्टोर कर दिया है L2 के अंदर। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू चेक व्हाट एवर द एलिमेंट्स आर देयर। पहले मैंने चेक किया L2 को, L2 में क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए L2 में कोई भी आंसर नहीं आया। एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिए कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि इम्पटी हुआ। T3 क्या है, अभी भी ये इम्पटी है। और अब हम चेक कर लेते हैं L को, देख लेते हैं। L में देखिए यहाँ पर DE आपका 2 बार एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आपका L2 है वो एक इम्पटी है और यहाँ पर जो एक्सटेंड है कोई भी न्यू वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब तक आपने जो समझा है यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या क्या आपने देख लिया। सबसे पहले आपने समझा लेंथ फंक्शन को, लेंथ के बाद लिस्ट फंक्शन, लिस्ट फंक्शन के बाद इंडेक्स, इंडेक्स के बाद अपेंड और लास्ट में अभी तक जो पढ़ा है आपने एक्सटेंड फंक्शन को आपने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड, दोनों में अंतर क्या है। पहला अंतर तो आप समझ गए होंगे, अपेंड एक एलिमेंट को ऐड करता है लास्ट में और जो आपका एक्सटेंड है मल्टीपल एलिमेंट्स को लास्ट में ऐड कर देता है, यानी कि लिस्ट के लास्ट में। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब इसके बाद और जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। अब आपको यहाँ पता ही होगा कि अगर हम कोई भी लिस्ट लेते हैं और हम कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना चाहें तो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, लेकिन एक्सटेंड आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्या यही काम अपेंड के साथ हो पाएगा? ठीक है, क्या यही काम अपेंड के साथ हो पाएगा? चलिए इसको हम चेक कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। लेट्स ओपन द विंडो हियर। नाउ विंडो इज ओपन नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ये चेक करना है कि अपेंड की हेल्प से क्या मल्टीपल एलिमेंट्स आपके ऐड हो सकते हैं। लेट्स चेक इट। पहले मैंने क्या लिखा है, एक मैंने यहाँ पर लिस्ट लिया, लिस्ट का नाम रखा मैंने T1 और T1 के अंदर मैंने कुछ ऑड नंबर्स को डाल दिया। ठीक है, पहली लिस्ट रेडी है, दूसरी लिस्ट हमारा T2 है। अब हम T2 ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज करिए मुझे यहाँ पर 7 और 9 को मुझे ऐड करना है, तो एक लिस्ट मैंने बना दिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, अपेंड करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा T1 डॉट
फिर मुझे अपेंड करना है तो मैंने अपेंड फंक्शन को यूज़ किया, और अपेंड फंक्शन को यूज़ करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो मैं अगर यहाँ पर डायरेक्टली T2 लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली T2 लिख दूँ, तो अब हमें चेक करना है कि क्या मल्टीपल एलिमेंट्स अपेंड की हेल्प से ऐड होंगे। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कि आंसर क्या आएगा। T1 मैंने यहाँ टाइप कर दिया, और अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर 7 और 9 यहाँ अपेंड हो चुका है, लेकिन एज ए लिस्ट टाइप, यहाँ पर एज ए लिस्ट टाइप ये एग्जीक्यूट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मेथड को समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम फिर से यही कमांड रन करेंगे, T1 अपेंड, और अपेंड के बाद कुछ वैल्यूज़ को मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ। मैं अभी तक तो मैंने सीधे वेरिएबल को मेंशन कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर मैं केवल वैल्यू को लिखूँगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 11, 12, ठीक है। T1 डॉट अपेंड 11, 12, देखते हैं ऐड होता है कि नहीं। ये देखिए आपका जो एरर आ गया यहाँ पर, अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो अपेंड है इस तरीके से केवल और केवल आपका एक आर्गुमेंट से एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो आपको दोनों ही चीज़ें लिस्ट की तरह आपको यहाँ पर आपको ऐड कराने के लिस्ट की तरह, यानी कि आपको ऐड करा सकते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट्स। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहला डिफरेंस मैंने आपको जो बताया यहाँ पर वो आपको याद रहना चाहिए। पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया आपको, पहला डिफरेंस ये बताया है कि लास्ट में जाके ऐड होता है एक सिंगल एलिमेंट और दूसरा मल्टीपल एलिमेंट के लिए। फिर मैंने आपको जो दूसरा डिफरेंस अभी भी समझाया है आपको मैंने यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर आपको अपेंड की हेल्प से ऐड करना है तो आपको यहाँ पर लिस्ट जो होना चाहिए वो सीक्वेंस टाइप का होना चाहिए, यानी कि लिस्ट टाइप का ही होना चाहिए, ठीक है, या स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, तभी आएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू टाइप का रखेंगे या नंबर टाइप का रखेंगे तो ऐड नहीं होगा। क्यों? नंबर टाइप का होने की हेल्प से आपका वो केवल एक ही तरह का आपका लिस्ट नहीं रहेगा, अलग अलग हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर और भी डिफरेंसेस की। यहाँ पर चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी तक आपने क्या समझा यहाँ पर कि अपेंड की हेल्प से मल्टीपल एलिमेंट्स हमने ऐड किया है, और अब हम यही काम एक्सटेंड की हेल्प से करेंगे। अब हमें ये सोचना है कि क्या एक्सटेंड हमारा जो फंक्शन है वो एक एलिमेंट्स को ऐड कर पाएगा, क्योंकि इसका जो फीचर है मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने का है, क्या सिंगल एलिमेंट कर पाएगा ये? चलिए चेक करते हैं। मैंने लिखा T1 में मैंने कुछ नंबर स्टोर कर लिए, जैसे मैंने 1, 2, 3, इसको मैंने बंद कर दिया, T1 हो गया। फिर मैंने लिया T2 में मैंने स्टोर कर दिया यहाँ पर 4, 5, ये बंद हो गया। ये दो लिस्ट हमारे सामने रेडी है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखा T1 लिखा यहाँ पर। T1 के बाद मैंने लिखा एक्सटेंड के बाद ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर T2, इस ब्रैकेट को हम लिखेंगे T2, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कि आपका ऐड होता है कि नहीं होगा। इस बार देखिए दोनों ही लिस्ट टाइप का है, प्रॉपर तरीके से आपको लिखा हुआ है, ऐड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। T1 का मैं डिटेल्स देख लेता हूँ मैं, ये रही, देखिए आपको प्रॉपर तरीके से ऐड हो गया है। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर अगर हम इस तरीके से ऐड करें T1 डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पर मैंने नंबर टाइप का दे दिया, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर 7,9, क्या इस तरीके से ऐड हो पाएगा? ये हमें चेक करना है। हम यहाँ चेक कर रहे हैं क्या सिंगल एलिमेंट ऐड होगा। मैंने यहाँ पे मल्टीपल कर दिया है, चेक करिए, देखिए एरर आ गया। एक्सटेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट। यहाँ देखिए जो एरर आए हैं यहाँ पर, ये आपको एरर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो एक्सटेंड है वो केवल एक ही आर्गुमेंट्स आपका ले सकता है यहाँ पर, ठीक है। आपको 1 by 1 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब आपको कुछ देर पहले मैंने बताया आपको कि यहाँ पर मल्टीपल टाइप का है, तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अभी देखिए मैंने करके भी दिखाया है आपको।
लेकिन जो नंबर्स है नंबर की तरह जाओ उसको आप ऐड नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्लियर हो होगा। टोटल जो डिफरेंसेस हैं वो आप अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके या इसको वीडियो को आराम से फॉरवर्ड करके आप देखिएगा, समझिएगा। बट स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट टिल नाउ, यू कैन आस्क एनी टाइम। Now students, it's time to end up this video, and we'll try to have the next part of this video so that you can just try to understand about the more about the functions, okay, more about the list functions, okay. चलिए, so students, I hope you have liked the video and you have entertained also. If you feel that you have any queries, any doubts, you can just contact with me. And it's time to say thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos also so that you can just have the review of the previous topics also, okay. I'm also available on the WhatsApp as well as YouTube comment box. You can check with me. Thank you so much for watching.